Good morning, students. Last time we had understood few rules of present tense. Now we are starting from here. Forms of present continuous tense. तो present continuous tense उसके different forms are given. See, the form of present continuous tense is am is are plus ing form of the verb. तो ये उसकी फॉर्मूला है कि हम am is या are है वो लिखते हैं first and then ing form of verb. If we want to make negative तो क्या करना है? am is are plus not plus ing form of the verb. तो it will become negative. Examples: Fatima is covering her notebook. You can see is covering. So this is present continuous form. फातिमा अपनी नोटबुक कवर कर रही है. B. Boys are learning martial arts. Boys है वो martial arts learn कर रहे हैं. C. Sania is not reading a magazine. Sania magazine read नहीं कर रही है. D. The dogs are not barking. Dogs है वो bark नहीं कर रहे हैं. Now in interrogative sentences, write the first part of the verb before the subject. Verb के two parts हैं. One is helping, that is am is are, and second is base form या root form में ing लगाए तो ing form है learning. So two parts है verb के. First part है we have to write before the subject. See over here, what are you doing? So are है वो first part है verb का, तो it is written first and then the ing form of verb is written after the subject. Okay. Verbs not used in continuous tense. कुछ verbs है which we cannot use in continuous tense. तो वो verbs कौन से हैं? There are some verbs which are used in the simple present tense but not in the present continuous tense. कुछ verbs ऐसे हैं जो सिर्फ simple present में use कर सकते हैं. We cannot use it in present continuous tense. A. Verbs of feelings and emotions. Feelings और emotions के जितने verbs हैं जैसे desire, want, fear, hate, dislike, respect, appreciate. तो इसको हम किसके साथ यूज नहीं कर सकते हैं? इन द कंटिन्यूअस फॉर्म. ही इज रिस्पेक्टिंग हर, तो ये इनकरेक्ट है. ही रिस्पेक्ट्स हर, तो दैट इज करेक्ट. नाउ फॉर बी, सी इट इज गिवन कि वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेट एंड एक्टिविटी. मेंटल स्टेट और एक्टिविटी जो भी है उसके वर्ब्स भी हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते हैं. जैसे डिसअग्री, अग्री, बिलीव, डिसबिलीव, differ, doubt, and last is find. Imagine, know, mean, remember, suppose, trust. ये सारे words हैं, उनको हम continuous form में नहीं लिखेंगे. See, example is given. She is doubting Hari's version of the story. वो हरि का जो version है story का उसको doubt कर रही है, तो this is incorrect. She doubts Hari's version of the story. तो that is correct. Doubts यानी simple present tense is used, है ना? तो दैट इज करेक्ट. वर्ब्स ऑफ सेंस. सेंस हमारी 5 है, वी ऑल नो. सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, टच. तो उसमें भी हम ये कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं. शी इज स्मेलिंग द रोज, इनकरेक्ट है. शी स्मेल्स द रोज, तो दैट इज करेक्ट. डी. वर्ब्स शोइंग पोजेशन. पोजेशन अगर कोई वर्ब शो कर रहा है जैसे possess, own, belong, उसको भी वी कैन नॉट राइट इन कंटिन्यूअस फॉर्म. She is possessing a big farm. उसके पास बड़ा फार्म है, तो that is wrong. She possesses a big farm. उसके पास बड़ा फार्म है, that is correct. Now, E. Verbs like appear, seem, consist, contain, resemble. ये जो verbs है, appear means जो दिखता है वो, seem means ऐसा लगना, consist जिसकी थिंग बनी है, contain कोई बॉक्स है तो इट कंटेन्स चॉकलेट मीन्स उसके अंदर चॉकलेट्स है. रिजेंबल जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर, मतलब वो अपने फादर जैसा दिखता है, तो उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करना इज रॉन्ग, सो इट इज इनकरेक्ट. ही रिजेंबल्स हिज फादर, वो अपने फादर को रिजेंबल करता है, उनके जैसा दिखता है, तो दैट इज करेक्ट. नाउ एक्सरसाइज सी. Fill in the blanks with appropriate verbs from the brackets. Bracket में you are already given 2 options and we have to see कि कौन सा आना चाहिए. First, Ganesh. Blanks a good collection of story books. तो possess कर रहा है ना, उसके पास story book का अच्छा collection है, तो possession है इसलिए has is having wrong होगा. Second, the cake blanks delicious. तो यहाँ पे senses की बात है इसलिए tastes. The cake है वो delicious taste करता है. Third,
He wishes me luck for my new assignment. उसने मेरे नए असाइनमेंट के लिए मुझे लक है वो विश किया है. तो इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात है, दैट्स वाई यहाँ पे विशेज आएगा इज विशिंग मी. नाउ फोर्थ वन, मोहन forgets his identity card every second day. forgets आएगा बिकॉज उसका मेंटल स्टेट है, मेंटल एक्टिविटी की बात है, किसी चीज को भूल जाना. फिफ्थ, नमन dislikes his new classmate. नमन को अपना नया क्लासमेट अच्छा नहीं लगता है, तो अगेन फीलिंग्स एंड इमोशंस की बात है, इसलिए dislikes is disliking will be wrong. Now, forms of present perfect tense. The form of present perfect tense is has have plus past participle form of the verb. तो ये इसकी फॉर्मूला है कि how do we write it? Has have फिर past participle form of the verb. नेगेटिव बनाने के लिए what we have to do? We have to write has have plus not. So first part है verb का, उसके बाद not put करेंगे and then past participle form. A. He has just finished his project work. तो उसने अभी अभी अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया है. सो ही है इसलिए हैज किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट. बाकी सारे जो फॉर्म्स है उसके साथ हैव है, दैट विल बी यूज्ड. बी. दे हैव लेफ्ट फॉर हरिद्वार बाय कार. वो लोग हरिद्वार कार से गए हैं, वहां जाने के लिए निकल गए हैं. सी. शी हैज नॉट गॉन टू हर फ्रेंड्स हाउस. वो अपने फ्रेंड्स के हाउस पे नहीं गई है, तो यू कैन सी हैज नॉट गॉन. डी. They have not gone to the auditorium. वो लोग ऑडिटोरियम नहीं गए हैं, तो अगेन हैव नॉट गॉन. इंट्रोगेटिव के लिए what we have to do? हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो हैज सब्जेक्ट ही, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ईटन एंड देन रिमेनिंग वर्ड्स ब्रेकफास्ट. ही हैज ही ईटन ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क. क्या उसने ब्रेकफास्ट खाया है? बी. What have they brought in the bag? See, question word वो होगा अगर question words कौन से होते हैं? What, when, why, where, when. ये सब question words है, तो we will put the question word first, then have, then subject, then past participle verb. What have they brought in the bag? वो बैग में क्या लेके आए हैं? Here are sentences with verbs in different forms of the present tense. Present tense के different forms में verbs are written. She plays badminton every evening. Every evening वो बैडमिंटन प्ले करते, तो देखो plays है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है. बी. They practice javelin throw in the stadium. वो लोग स्टेडियम में जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते हैं. तो सी दे है इसलिए प्रैक्टिसेस नहीं आएगा, प्रैक्टिस आएगा. We had seen this rule before. सी. He is studying now. वो अभी पढ़ाई कर रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. शी इज लर्निंग टू प्ले द गिटार. वो गिटार प्ले करना सीख रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. एम इज आर प्लस आई एन जी इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ई. गौरव हैज गॉन ऑन एन एक्सपीडिशन. गौरव है वो एक्सपीडिशन पे गया है, जर्नी पे गया है. प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. Now exercise D. Read the following sentences and fill in the blanks with appropriate forms of verbs given in brackets. Tenses mention कर दी है, bracket में verbs are also given. तो tense जो है according to that we have to fill the blanks. Present continuous दिया है, so join का present continuous form है. they है इसलिए are. They are joining me for lunch today. वो लोग आज मुझे lunch में join करेंगे. Second, सिंपल प्रेजेंट यूज करना है एंड वर्ब इज गिवन लव. बॉयज प्लूरल है, सो लव आएगा, लव्स नहीं. बॉयज लव टू फ्लाई काइट्स. बॉयज को काइट फ्लाई करना अच्छा लगता है. थर्ड, द सन. राइज और सेट टू वर्ब्स दिए हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है. सन सिंगुलर है, सो वी हैव टू एड एस और ईएस. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सन है वो ईस्ट में राइज होता है, इन वेस्ट में सेट. फोर, द थिएटर फेस्टिवल ब्लैंक्स इन द कमिंग वीकेंड. आने वाले वीकेंड में थिएटर फेस्टिवल ब्लैंक्स. बिगिन है वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस. फेस्टिवल सिंगुलर है, सो वी विल ऐड एस. फेस्टिवल बिगिन्स. 5, माई फ्रेंड ब्लैंक्स रीडिंग द नॉवेल. प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है फिनिश का. फ्रेंड सिंगुलर है इसलिए हैज. तो माई फ्रेंड हैज फिनिश्ड रीडिंग द नॉवेल. मेरे फ्रेंड ने नॉवेल रीड करना कंप्लीट कर लिया. 6, द सी वेव्स ब्लैंक्स ऑन द सी शोर.
लैश दिया है वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है. सो सी वेव्स है, प्लूरल है वेव्स इसलिए आर. सी वेव्स है, दे आर लैशिंग ऑन द सी शोर, वो टकरा रहे हैं जोर से सी शोर पे. राइट वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है. तो आई है इसलिए हैव. आई हैव रिटन द लेटर एंड पोस्टेड इट. लेटर लिख के मैंने पोस्ट कर दिया है. एक्सरसाइज ई, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. तो हमें जो भी डायरेक्शंस दिए हैं वैसे रीराइट करना है. फर्स्ट टू हैव बीन डन. सी, दे आर मीटिंग टुडे. नेगेटिव बनाना है तो वी नो कि वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट ऐड होगा. दे आर नॉट मीटिंग टुडे. सेकेंड, शी इज ट्रैवलिंग बाय बस. वो बस से ट्रैवल कर रही है. वी हैव टू मेक इंट्रोगेटिव. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब विल गो इन द फर्स्ट प्लेस और फिर सब्जेक्ट. So is she traveling by bus? Third one, we have to make interrogative. They are leaving for Kolkata soon. So क्या होगा, फर्स्ट पार्ट वर्ब का है, will come in the first place. Are they leaving for Kolkata soon? Question mark. Fourth, she plays the piano. Interrogative बनाना है. Now plays verb is given. तो we know कि we have to add do or does with simple forms of the verb to form interrogative. इसलिए she है तो does she play the piano. see over here, does use करते हैं तब verb में से ses we will remove. Fifth one, she is going out this weekend. वो इस weekend बाहर जा रही है. नेगेटिव बनाना है. verb का फर्स्ट पार्ट है is, तो will add not over there. she is not going out this weekend. Sixth one, students are rehearsing for the sports day. और हमें क्या बनाना है, नेगेटिव. तो आर के बाद विल पुट नॉट. स्टूडेंट्स आर नॉट रिहर्सिंग फॉर द स्पोर्ट्स डे. सेवेंथ, ग्रैंडमा इज नीटिंग अ कार्डिगन. इंट्रोगेटिव बनाना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल गो, वर्ब का फर्स्ट पार्ट विल गो इन द फर्स्ट प्लेस एंड देन सब्जेक्ट. इज ग्रैंडमा नीटिंग अ कार्डिगन? क्वेश्चन मार्क. क्या ग्रैंडमा कार्डिगन बना रहे? कार्डिगन इज थिन स्वेटर. डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसमें क्या डिफरेंस है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी राइट. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोल रहे हैं तब जो एक्शन हो रही है उसको शो करने के लिए वी यूज present continuous form. Example first, my friend play with me every day. तो हैबिट है कि मेरे जो फ्रेंड्स है वो रोज मेरे साथ प्ले करते हैं, इसलिए इट्स रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट इज हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन. बी, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग विथ मी राइट नाउ. तो एक्शन है, इट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोल रहे तब एक्शन हो रही है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म यूज हुआ है. विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? वी यूज वर्ड्स लाइक नाउ, अभी, टुडे मीन्स आज, एट प्रेजेंट. विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज वर्ड्स लाइक ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, बार बार, यूजुअली, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड एवरी डे. एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग नाउ. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वी हैव यूज्ड वर्ड नाउ. इट यूजुअली रेन्स एवरी डे इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में यूजुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम, एवरी डे रेन होता है. करेक्ट यूज ऑफ सम वर्ब्स. कुछ वर्ब्स के करेक्ट यूजेस यहाँ पे शो किए हैं. एक तो वर्ब है हैव. व्हेन हैव इज यूज्ड टू शो पोजीशन और कंडीशन, वी डू नॉट यूज इट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अगर हैव है वो पोजीशन या कंडीशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, तब उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करना विल बी रॉन्ग. आई हैव अ डिजिटल कैमरा. तो दैट इज ट्रू, बट हम ऐसे नहीं कह सकते कि आई एम हैविंग अ डिजिटल कैमरा. शी हैज अ टूथ एक. देखो कंडीशन दिखाएं कि उसको टूथ एक हो रहा है, उसका जो टूथ है उसमें पेन है, तो दैट इज ट्रू. बट अगर हम लिखें कि शी इज हैविंग अ टूथ एक, तो दैट विल बी रॉन्ग. हैव मे बी यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन. कब हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैव को लिख सकते हैं? When we refer to some arrangement for future, future के कुछ arrangement की बात हो रही है तब. Example, they are having a gala party next week. Next week वो लोग बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, तो we are using are having, that is ing form of have. In sentences where have implies to take,
कोई चीज़ को लेना अगर ऐसा शो कर रहा है तब भी ing फॉर्म दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म यूज कर सकते हैं. शी इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट ले रही है. ही इज हैविंग अ क्विक शावर, वो अपना क्विक शावर ले रहा है. नाउ सी, लुक, लिसन एंड हियर. तो सी, लुक दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, सी एंड हियर आर नॉट एक्शन वर्ड्स एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग एन एक्शन. हमारी आईज ओपन है, हम चाहे कि ना चाहे तो हमें जो हमारे आसपास की थिंग्स है वो हमें दिखती हैं. दैट फॉर दैट वी विल यूज सी. वैसे ही हमारे ईयर्स हैं, है ना, तो हम लोग आसपास जो भी नॉइज होता है वो हमें सुनाई देता है. तो इट्स नॉट अवर इंटेंशन, हमारा इंटेंशन नहीं है तो फॉर दैट वी विल यूज वर्ड हियर. लुक एंड लिसन, दे आर एक्शन वर्ड्स. मीन्स वो इंडिकेट क्या करते हैं? इंटेंशनल एक्टिविटीज को इंडिकेट करते हैं. सी ओवर हियर, लुक एंड लिसन आर एक्शन वर्ड्स एंड इंडिकेट इंटेंशनल एक्टिविटी. मतलब हमारा पर्पस है तब. आई सी अ बेगर ऑन द फुटपाथ, हम चल रहे हैं और हमें फुटपाथ पे बेगर दिखता है. आई हियर द अनाउंसमेंट ऑन द पब्लिक एड्रेस सिस्टम. पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे अनाउंसमेंट हो रहा है और हम वहां पे हैं तो हमें वो सुनाई देता है. शी इज लुकिंग एट मी, मतलब वो पर्पसफुली देख रही है, उसका इंटेंशन है. इज ही लिसनिंग टू मी, क्या वो मुझे सुन रहा है? तो यहाँ पे भी देयर इज इंटेंशन. नाउ फॉर एक्सरसाइज एफ वी हैव टू यूज करेक्टली हैव, हैविंग, सी, लुकिंग, लिसन और हियर. फर्स्ट वन, माई फ्रेंड्स ब्लैंक्स देयर ओन मोबाइल्स. तो देखो पोजीशन की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा है कि पोजीशन है, तब वी हैव टू यूज हैव. So my friends have their own mobiles. मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके पास उनका मोबाइल है. सेकेंड, he is having a healthy lunch. देखो यहाँ पे भी एग्जाम्पल में दिया है कि to take जब इस फॉर्म में, इस मीनिंग में यूज होता है तब वी कैन यूज ing. तो हेल्थी लंच ले रहा है. I can blanks the mountains from here. I can see the mountains. हम जहाँ पे खड़े हैं वहां से वो माउंटेन्स दिख रहे हैं. आई एम लुकिंग एट द शॉल्स ऑन सेल. सेल में जो शॉल्स लगे, हम सेल में जाते हैं तब हम क्लोथ्स को इंटेंशनली देखते हैं. सो लुकिंग. डिड यू लिसन टू ऑल दैट ही हैड टू से. उसने जो भी कहा क्या तुमने वो सुना है? मीन्स ध्यान से सुना है. शी कैन हियर द लाउड म्यूजिक. तो म्यूजिक इतना लाउड बज रहा है कि उसको वो सुनाई दे रहा है. टुडे वी आर गोइंग टू कीप टिल हियर ओनली.